लिखिए, when the point charge is placed in an electric field, when a point charge is placed in electric field, then it experiences the electrostatic force F equals to QE. F equals to QE by the charges which produce the electric field. By the charges which produce the electric field. Let me explain. ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कॉन्सेप्ट आपको लग सकता है. देखो देखो देखो, याद आया ये डायपोल था. इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है यहां पे बताना जरा. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द डायपोल? क्या था? 2kp बाय r³. इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं, राइट? इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज क्या है? लेट मी एक्सप्लेन. कि अगर मैं इस पॉइंट पे r डिस्टेंस पे एक q चार्ज रख दूं, तो ये डायपोल उस q चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा ना, वो फोर्स होगा q इंटू ई. क्योंकि इस डायपोल का इस पे मैं ये वाला फोर्स नहीं लिख सकता. क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि ये तो पॉइंट चार्ज है, बट ये पॉइंट चार्ज, तो कूलम्ब्स लॉ फेल हो जाता है यहां पे. इसीलिए हमको क्या ड्राइव करना पड़ता है? इलेक्ट्रिक फील्ड. और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो भी चार्ज वहां रखा है मल्टीप्लाई करके हम फोर्स लिख देते हैं. तो जैसे बताओ, इस डायपोल का इस पॉइंट चार्ज पे फोर्स क्या होगा? फोर्स तो होगा ना, रिपेल तो करेगा नहीं उसको, क्योंकि इधर पॉजिटिव पास में, नेगेटिव दूर है. तो या तो इन दोनों को फिर से अलग अलग सेपरेट करके इंटीग्रेट करो, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल लिया ऑलरेडी इंटीग्रेट करके, या वो सब करके उसको लगा दो. तो क्या हो जाएगा? Q इंटू 2kp बाय r³. That is the force. Do you understand the meaning of force now? That one way of writing force is Coulomb's law, but for that there is a condition that both of two should be point charges. But suppose if one of them is not a point charge, then we write electric field to do that thing. And that electric field gives us the force due to that configuration of charges on the given point charge. Now in this case we have assumed that here there are lots of charges are present. Basically it's a sheet of charge which is producing a uniform electric field, because the sheet of charge produces uniform electric field. तो मैंने sheet of charge देने की जरूरत नहीं है. It is understood कि जो भी यहाँ पे चार्जेस रखे हैं, ये सारे चार्जेस इस डायरेक्शन में अपना फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपना इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस कर रहे हैं. और उसकी वैल्यू कितनी है? E0, 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 E0. So all these charges together, all of them together will exert a net force on it, and this force will be given by, बताओ जरा, इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? F इक्वल्स टू Q इंटू E0. अब यूनिफॉर्म हमने बोल दिया. यूनिफॉर्म बोलने से क्या फायदा है? इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह फोर्स की वैल्यू, ये पार्टिकल रेस्ट पे रहेगा, मूव करना चालू कर देगा. मूव करेगा, फोर्स लग रहा है तो मूव करेगा. तो ये जैसे जैसे आगे आएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोर्स हर जगह, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है. अनन्या, समझ में आया मैंने क्या बोला? ये यस, क्लियर है ये? तो अगर फोर्स ये आ गया तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? Force is equal to Q into E0 आ गया. So what is the acceleration of the particle? Will it be remain at rest or it will move? It will move. So it will have some acceleration. How do you write acceleration? Do we have any formula to write acceleration from force? F by m. Very good. So acceleration of the charge will be QE0 by mass of the charge. Very good. Is it variable acceleration or a constant acceleration? Y constant, U is constant, M in constant, and we have taken a special case where E is also constant because it is
uniform. That is the purpose to take uniform field, so that we will get a constant acceleration. Now, if the acceleration is constant, can you write its velocity after time t? Which formula? How do we write velocities? If initial velocity is 0, let's say it is given to you, initial velocity, it is released from rest. So how do we write velocity? Yes, v is equal to u plus at. Do you understand what I am doing? ये हमने लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, ये हमने लिखा लॉज ऑफ मोशन से, ये हमने लिखा काइनेमेटिक्स से. दैट इज द ब्यूटी, दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग. कि आखिर फोर्स लिखने का फायदा क्या है? अरे भैया, फोर्स अगर लिख पाएंगे तो हम इसके मोशन को डिस्क्राइब कर पाएंगे, और जानबूझकर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ही डिस्क्राइब करना है. So motion of a charged particle under uniform electric field is as simple as that. Force will be q e naught, acceleration will be force upon mass, and velocity will be v equal to u plus at. What will be displacement? बताओ t टाइम में कितना डिस्प्लेस कर जाएगा ये? Very good. What is u plus what is a? Very good. Don't you think it is very simple? Correct. समझ में आ गया अनन्या? Yes, sir. It's a very interesting case. मैकेनिक्स अप्लाई हो रहा है. लिखिए क्वेश्चन, मिटा दो ये. Yes, sir. लिखिए एग्जाम्पल. A point charge 2 microcoulomb, comma 3 kg. 3 kg नहीं, 30 grams. A point charge of 2 microcoulomb, 3 kg, comma 30 grams, is placed under the uniform electric field. Is placed under the uniform electric field. E vector is equal to 200 volt per meter I cap in a gravity free space. है ना? ये 200 की जगह इसको 300 कर लो. 300 वोल्ट पर मीटर इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस. क्या लिखा हमने लैंग्वेज? फिर से बोलना जरा एक बार. Point charge 2 microcoulomb 30 grams placed under the uniform electric field in a in a gravity free space at rest. Find पहला पार्ट लिखिए. Its acceleration. Second, its velocity or velocity acquired by charged particle in 10 seconds. Third, time taken by it to travel 1 meter. बताइए. सर एक चीज एक्सप्लेन कर दे. कितना? सर मैं कह रही हूँ कि वो जो हमने पिछले में u0 लिया था, हाँ, वो फॉर्मूला लिख स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. सर ये हमेशा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वो रहेगा या नहीं, फिर हो सकता नहीं, ऐसा नहीं है. अगर वेलोसिटी होगी जैसे अगले क्वेश्चन में दे रहा हूं मैं, ये तो मैंने बेसिक फॉर्मूला मतलब दिमाग में बैठ जाए इसलिए दिया ये क्वेश्चन. हर क्वेश्चन में अलग, बट हर क्वेश्चन में सेम क्या होगा? F इक्वल टू एम ए, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी. यू की वैल्यू अलग हो सकती है बट इक्वेशन थोड़ी अलग होगी.
कितना आ रहा है एक्सेलरेशन? क्या आपको लगता नहीं कांस्टेंट फोर्स लगेगा तो QE/m तो हर केस में होना चाहिए? कितना हो जाएगा? Q कितना है? 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁻⁶। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 300 डिवाइडेड बाय मास कितना है? 30 ग्राम्स। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना ना भूलें। कितना आ गया? ये 0 कट गया, ये 3 से ये 10 आ गया। कितना हो गया? 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? व्हाट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड्स? तो v इक्वल्स टू u प्लस at तो हमेशा ही लगेगा ना। अब u अगर नॉन जीरो है तो नॉन जीरो डाल देना, इस केस में जीरो है तो जीरो ले लो। कितना आ जाएगा? प्लस 0.02 × 10 कितना आ गया? 0.2 मीटर्स पर सेकेंड। इजी। अब डिस्प्लेसमेंट में s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इक्वल टू यानी 1 विल बी इक्वल टू u कितना है? 0 प्लस हाफ a कितना है? 0.02 × t स्क्वायर। तो आप देखेंगे ये तो बहुत अच्छा आंसर आ जाएगा। 10 सेकंड आ गया मेरे ख्याल से। 0.01 है ना ये। तो t स्क्वायर इक्वल टू 1/0.01 यानी 100। तो t इक्वल टू आ जाएगा, इजी राइट। अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, बॉल ऑफ मास m is hanged vertically a ball of mass m is hanged vertically having charge q as shown. Having charge q as shown. If we switch on the electric field, in horizontal direction, the ball gets deflected by थीटा। यानी अगर आपने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन कर दिया किसी भी तरीके से, लेट्स से इफ यू हैव स्विच्ड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ कोर्स E की वैल्यू नहीं पता है आपको, ये तो मैंने लिख दिया। तो क्या होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण? इस बॉल पे क्या, बॉल पे भी चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस बॉल पे फोर्स लगाएगा कि नहीं? किधर लगाएगा? उस डायरेक्शन में। तो क्या होगा इस बॉल का मोशन? अगर रस्सी नहीं होती ये तो एक्सलेट कर जाती, लेकिन क्योंकि रस्सी लगी हुई है तो ये भाग नहीं सकती, तो ये क्या कर जाएगी? डिफ्लेक्ट होकर के रह जाएगी ऐसी। वो जाना तो चाहती है आगे, बट ये रस्सी नहीं जाने देगी। और हमें ये बता दिया है कि इट हैज डिफ्लेक्टेड थ्रू एंगल थीटा। तो हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मास q और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेना पड़ेगा यहाँ पे। यह समझ में आ रहा होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेना पड़ेगा। तो बताओ, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, नीचे की तरफ फोर्स लगा, आप निकाल लेना, और इधर टेंशन लगा, एंगल आपको बताना है। नहीं, एंगल नहीं, ई बताना है। सॉल्व कर दो। तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बॉल पे? रस्सी का टेंशन, और नीचे की तरफ, और इधर QE0। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? कौन किसको बैलेंस कर रहा है? mg और t cos थीटा। वेरी गुड। कंपोनेंट किसके करने हैं? mg, इसके कंपोनेंट ऑफ t। तो ऊपर की तरफ t का कंपोनेंट कितना हो जाएगा? t cos थीटा, और इस डायरेक्शन t sin थीटा। तो क्या कहानी आ गई? t sin थीटा will be equal to QE0 and t cos theta will be equal to mg। ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, राइट? नाउ इट इज बेटर टू डिवाइड।
जैसे आप डिवाइड करेंगे तो एक अननोन टर्म निकल जाएगा, ये टी वाला, तो ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू क्यू ई नॉट बाय एम जी। ये तो वही क्वेश्चन आ गया, तो ई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, एम जी tan थीटा बाय क्यू। इजी, मुश्किल नहीं लग रहा होगा, इजी है बिल्कुल। अनन्या क्लियर है? हाँ सर। एग्जाम्पल नंबर 3, लिखिए, एन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, एन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर moving with velocity, moving with the same velocity, enters a space of uniform electric field, enters a space of uniform electric field in perpendicular direction, in perpendicular direction. Identify their trajectories, identify their trajectories, neglect gravity. 3 पार्टिकल्स हैं, हमें नहीं पता इनमें इलेक्ट्रॉन कौन सा है, प्रोटॉन कौन सा है, इनको मैं 1 2 3 नाम देता हूं, ये तीनों v स्पीड से मूव कर रहे हैं, एंड दे एंटर्स अ ट्रेजेक्टरी, अ स्पेस जहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे 2 लाइनें बनाई है, एक्चुअली में लाइन नहीं है, प्लेट है जिसका मैंने साइड व्यू दिखाया है। ये लाइन नहीं है, ये क्या है, प्लेट। मतलब एक प्लेट ऐसे रखिए और एक प्लेट इसके जस्ट ऊपर ऐसे रखिए, तो ऊपर वाली प्लेट में प्लस चार्ज है, नीचे वाली प्लेट में माइनस चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में आपको लगेगा नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किस डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं दे रखी है आपको, बस यू शुड विजुअलाइज कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसके अंदर होता है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। तो आपको क्या लगता है ये जो पार्टिकल्स हैं ये कैसे मूव कर जाएंगे, सीधे मूव कर जाएंगे या टर्न कर सकते हैं? यहां बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन ये इस जैसे ही इस रीजन को एंटर करेंगे, देखिए जरा मोशन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर दिखी आपको। तो यहाँ पे 3 तरह के ट्रेजेक्टरीज दिखाई दी हैं, एक तो सीधा चला गया, एक ऊपर चला गया और एक नीचे चला गया। तो आपको इस ट्रेजेक्टरी को देख करके बताना है कि इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन है, कौन सा प्रोटॉन है और कौन सा न्यूट्रॉन है। हमें ये इस डायग्राम से विजुअलाइज करना है ना? हाँ, इस डायग्राम से सोच के बताना है। तो फर्स्ट वाला वो इलेक्ट्रॉन है क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज के पास सीधा जा रहा सीधा है। कौन सा होगा जो सीधा सीधा, भाई एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, सीधा सीधा कौन मूव करेगा, न्यूट्रॉन। तो ये तो पक्का न्यूट्रॉन कौन सा हो गया, सेकंड। न्यूट्रॉन। इज इट क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटी तो है ही नहीं है, अगर ग्रेविटी नहीं है ये तो सीधा मूव करना चाहिए, तो इसको टेढ़ा कौन करेगा, कौन इसको, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो इलेक्ट्रॉन किसको अट्रैक्ट कर, किसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। या वैसे भी सोचो ये जो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे एंटर करेगा, इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, माइनस ही, तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, राइट। और प्रोटॉन पे फोर्स जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही लगेगा, प्लस ई, और वहां पे, आई होप इट मेक सेंस। और आप खुद ही देख सकते हैं वैसे भी सर, प्रोटॉन उधर चला जाएगा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स, और कौन है, कौन ले जाने, एक्चुअली में इनको ले जाने वाला कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। खत्म। तो प्रोटॉन का कौन सा हो जाएगा, प्रोटॉन विल बी थर्ड एंड इलेक्ट्रॉन विल बी फर्स्ट। आई होप इट मेक सेंस। अच्छा, इसी में अगर मैं, इसी क्वेश्चन के अंदर, अब मैं अगला क्वेश्चन ना लिख करके इसी में अगर मैं थोड़ा और डिटेल में पूछूं तुमसे, दो पार्टिकल्स का मोशन सेम स्पीड से एंटर कर रहे हैं, लेकिन एक पार्टिकल जो है वो ऐसे चला गया
और एक पार्टिकल ऐसे चला गया। क्या फर्क है दोनों में? फिर एक नेगेटिव के ज्यादा पास है तो एक का डिफ्लेक्शन ज्यादा जल्दी हो गया, एक का डिफ्लेक्शन कम हो गया। इसमें एक प्रोटॉन है, हमें नहीं पता कौन सा। प्रोटॉन का चार्ज होता है +1 और मास होता है 1 AMU। और एक ऐसी अल्फा पार्टिकल, इसको क्या बोलते हैं? ये हीलियम न्यूक्लियस होता है। अगर आपने रदरफोर्ड पढ़ा हो कभी, केमिस्ट्री में पढ़ा था रदरफोर्ड मॉडल, तो वहां पे अल्फा पार्टिकल होता था। इसका चार्ज कितना होता है? +2 और मास कितना होता है इसका? 4 टाइम्स, यानी प्रोटॉन का 4 गुना तो मास है। और तो अब मुझे बताओ कि इनमें से हैवियर पार्टिकल कौन है? ये चलो अल्फा पार्टिकल छोड़ो, अल्फा पार्टिकल में तुमको कंफ्यूजन ज्यादा होगा। लेट मी मेक इट इवन मोर सिंपल। ड्यूट्रॉन सुना है तुमने? यस ड्यूट्रॉन है H2+1। ड्यूट्रॉन के अंदर एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, राइट? लेकिन चार्ज उसका क्या होता है? +1 ही है ड्यूट्रॉन। तो क्या फर्क है दोनों में? ये हैवी सर है, चार्ज का, चार्ज का फर्क नहीं है। सॉरी मास का दोनों हाइड्रोजन एटम का आइसोटोप्स है। हाइड्रोजन एटम होता है ना, हाँ सर मास H का का फर्क है वो। आइसोटोप H11, H12, H13। इन तीनों के अंदर Z की वैल्यू कितनी है? 1। इसको हाइड्रोजन एटम, ये ड्यूट्रॉन और ये ट्रिटॉन, ट्रिटियम राइट? तो ये तीनों में इसका मास x मानोगे तो उसका 2x और उसका 3x, लेकिन तीनों का चार्ज इक्वल। चार्ज इसका E, इसका भी E और इसका भी E, लेकिन मास इसका 1 AMU, इसका 2 AMU और इसका 3 AMU। तो यहां पे क्या फर्क है दोनों पे? चार्ज पे फर्क है, मास पे फर्क है? मास। तो ये बताओ, अगर चार्ज सेम हो गया तो तुम्हें लगता नहीं फोर्स तो सेम हो गया दोनों का? भाई इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स क्या लग रहा होगा दोनों पे? F = E × E। लेकिन एक्सलेशन दोनों का सेम है या अलग है? अलग है। किसका एक्सलेशन ज्यादा है? प्रोटॉन का प्रोटॉन का एक्सलेशन ज्यादा है, क्यों? क्योंकि मास होता है। सो एक्सलेशन विल बी इक्वल टू E/m। तो अगर मैं देखूं तो A ऑफ प्रोटॉन विल बी ग्रेटर देन A ऑफ ड्यूट्रॉन। तो जिसका एक्सलेशन ज्यादा है, एक्सलेशन अगर ज्यादा हो गया तो उससे पाथ में क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, अगर एक्सलेशन कम हो जाए, सबसे कम एक्सलेशन कितना हो सकता है? 0। तो पाथ कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो गया तो? पॉजिटिव हो गया तो? और ज्यादा पॉजिटिव हो जाए तो? समझ में आया? जिस पार्टिकल का एक्सलेशन ज्यादा है उस पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री ज्यादा है, क्योंकि जो पार्टिकल हैवी है ना वो उतना टर्न नहीं कर पाएगा सेम फोर्स से। ड्यू टू इनर्शिया the neutron will be not able to turn that much as much that a proton will do. So clearly the inertia, the deflection in the proton will be much higher due to the inertia as compared to deflection in। तो यहां पे ये 2 वाला पार्ट किसका हो जाएगा? प्रोटॉन का। और ये 1 वाला किसका हो जाएगा? अल्फा कह दो, या फिर यहां पे क्या बोल दूं इसको? H12। राइट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कई बार ऐसे ये IIT का क्वेश्चन, वो बोर्ड का क्वेश्चन, बोर्ड का क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, प्लस माइनस देखना था। और IIT में वही क्वेश्चन का मॉडिफाइड, इसमें यही देखना था किसका ज्यादा। इज इट क्लियर अनन्या? क्लियर हुआ ये? यस सर। तो जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसका टर्न यहाँ पे ज्यादा होगा। मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा या ठीक है?
अभी और करते हैं, इसमें 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा तब क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, एनसीईआरटी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, एडिशनल एक्सरसाइज का लास्ट। लिखिए, अ पार्टिकल ऑफ मास m, एग्जांपल नंबर 4, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q, small q, enters a region a particle of mass m and charge q enters the region between the two charged plates between the two charged plates, initially moving along x-axis with speed vx, initially moving along x-axis with speed v subscript x, full stop. If the length of plate is L, if the length of plate is L and the uniform electric field E is maintained between the plates, and uniform electric field E is maintained between the plates, full stop, show that full stop, show that the vertical deflection of the particle, show that the vertical deflection of the particle at the opposite edge of the plate is, at the opposite edge of the plate is vertical deflection of the particle at opposite edge of the plate is QE L square upon 2mVx square. Show that. इग्नोर ग्रेविटी, ग्रेविटी को इग्नोर करना है। सबसे पहले तो डायग्राम सोचो, सबसे पहले तो इस लैंग्वेज से इंटरप्रेट करो हो क्या रहा है। दो प्लेट दे रखी है, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होगी, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट होगी। प्लेट बोलने से क्या फायदा है? प्लेट बोलने से क्या फायदा है? क्यों बोल रहे हैं प्लेट बार बार? ये बताना चाहते हैं कि इस रीजन में देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी वैल्यू भी इसने दे दी, कितनी है? ई नॉट। यस, ये ई नॉट है तो इसको भी ई नॉट ले लीजिए। हेलो, हाँ हाँ चल रही, हाँ। अब यहां पे एक चार्ज पार्टिकल इंटर करता है। इस बार चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे या मूव कर रहा है? वही जो मैंने क्वेश्चन अभी कराया। एक चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है और उसकी स्पीड किस डायरेक्शन में? vx। तो आपने देखा इस चार्ज पार्टिकल का लेट से q है, मास m है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर गया? अगर ये न्यूट्रॉन होता ये ऐसे ऐसे सीधे मूव करता कि नहीं? बट क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, दिस चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट्स और मूव्स लाइक दिस। अच्छा, यहां से निकलने के बाद और डिफ्लेक्ट होता रहेगा और इट विल मूव विथ नाउ इन द सेम लाइन। दिख गया मोशन आपको? क्योंकि इसके आगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, बस यहां पर डिफ्लेक्ट हो गया। तो आपको क्या दे रखा है? ये y क्या है? डेल्टा y क्या है? दिखा आपको डेल्टा y? व्हाट इज डेल्टा y? ये
यहां से निकलना चाहिए था लेकिन ये यहां से निकला, इसी को कहूंगा मैं डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन। और आपको दे रखी है ये टोटल लेंथ, यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ आपको दे रखी है L, प्लेट की लेंथ है L। बताओ कैसे करें इसको। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। किस मोशन से इसको रिलेट करें, ये किस मोशन से? इज इट 1D और 2D? 2D। 2D में भी कौन सा? सर्कुलर या प्रोजेक्टाइल, दो ही तो पढ़े हमने। ये किससे ज्यादा मैच करता है? प्रोजेक्टाइल। वेरी गुड। प्रोजेक्टाइल में एक्सेलेरेशन जी होता था, यहां पे एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? QE/m। डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन ही तो है। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल नहीं लग रहा है, एक बॉल को थ्रो कर दिया हॉरिजॉन्टली और ये टर्न हो गई। यस वहां पे आप एक्सेलेरेशन लिखते थे जी डाउनवर्ड, यहां पे जी की जगह QE/m करना। So the motion of charged particle is projectile is similar to, तो तुरंत दो डायरेक्शन में ब्रेक कर लें इस मोशन को। बताओ इस चार्ज पे जब ये मूव कर रहा था बीच में, इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है? हमेशा नीचे। और उस फोर्स की वैल्यू कितनी है? QE0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और ये फोर्स, यानी अगर मैं बोलूं आपसे फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो क्या बोलेंगे आप? ऑल द फोर्स इज अलोंग वाई डायरेक्शन। Fy की वैल्यू कितनी आ गई? -QE0, डाउनवर्ड डायरेक्शन। या मैग्नीट्यूड अगर लिखना हो तो हटा दो माइनस, या लिख दूं? लिख देते हैं। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन? बताइए अनन्या, एक्सेलरेशन कितना एक्स डायरेक्शन में? अच्छा होगा हम्म क्योंकि एफ एक्स डायरेक्शन में 0 है तो एक्सेलरेशन अगर मैं यहां से देखूं तो बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, यहां से नहीं सोच पा रहे, लेकिन अगर आप न्यूटन्स लॉ से देखो, भैया अगर एक्स में कोई फोर्स ही नहीं है, 0। यहां से नहीं दिखेगा। यही तो बात है, वहां से क्या देखना है? अगर एक्स में कोई फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन यानी एक्स डायरेक्शन में स्पीड चेंज नहीं हुई, एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहा होगा, यानी एक्स डायरेक्शन की स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। तो ये बताओ इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? L = VT। ये तो वहां भी लिखते थे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कांस्टेंट। तो इसको, इस प्लेट को क्रॉस करने में जो टाइम लगा, कितना लगा? L अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल स्पीड। अब वर्टिकल डायरेक्शन में चलते हैं तो कितना हो गया? AY खत्म हो गया क्वेश्चन, तो AY हो जाएगा -QE0/m। तो V बढ़ती जाएगी, S = UT प्लस हाफ AT²। यहां पे इनिशियल स्पीड कितनी है? नहीं नहीं नहीं, Vx नहीं, Vy लिखोगे ना, वो तो 0 है ना। Vx तो x वाली है, y डायरेक्शन में तो कोई इनिशियल स्पीड, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा y, S = UT प्लस हाफ AT²। आई होप इट इज क्लियर। अब क्या करना है? बस अब क्या करना है? बस प्रूफ कैसे होगा ये? क्या रिप्लेस कर दूं? डेल्टा वाई तो आ गया हमारा। कितना है डेल्टा वाई? मैग्नीट्यूड की बात करें, वैसे लिखे रहे तो माइनस साइड, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो जाएगा ये? QE0/2m T²। टी की जगह क्या डाल दूं? वेरी गुड, आ गया ना? मजा आई है ना? बढ़िया चीज। तो प्रोजेक्टाइल आपने
हाँ। सर जहाँ शो करना था वहाँ ऊपर एल स्क्वायर था, इधर नीचे एल स्क्वायर है, क्या हुआ इधर? सर इधर आपने वो लिखा ना क्यू ई एल स्क्वायर बाय 2mv स्क्वायर एक्स, और इधर उल्टा लिख दिया क्यू एल को। अच्छा अच्छा, कुछ मिस्टेक किया क्या, देखना जरा। सर जो आपने पिंक से लिखा है उसमें एल स्क्वायर ऊपर है, और जो आपने ग्रीन से लिखा है टी उसमें क्यों किया मैंने यार, फालतू। अरे टी स्क्वायर तो ऊपर आएगा ना यार, क्यू बाय एम और हाफ ए टी स्क्वायर तो ऊपर आता है ना। कितना हो जाएगा यहाँ पे? सो दिस थिंग विल बी, ऊपर हो जाएगा एल स्क्वायर बाय वी एक्स। तो ये पॉइंट चार्ज का मोशन था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, रेक्टाइल मोशन, स्ट्रेट लाइन, एक्सलेटेड, मतलब ये पूरा वही कॉन्सेप्ट आ जाता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब पॉइंट चार्ज के बजाय नाउ लेट्स प्लेस डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखिए, या पहले क्वेश्चन करूंगा फिर उसके बाद ये समझाऊंगा, तब ज्यादा मजा आना चाहिए। लिखिए पहले एग्जांपल नंबर 5। क्या पॉइंट चार्ज के बजाय अगर मैं डाइपोल रख दूं फील्ड के अंदर तो क्या होगा? दोनों भी फोर्स लगेगा। भाई अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल रख दूं तो क्या होगा? डाइपोल का मतलब क्या है? दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक तो है Q1 और एक है, सॉरी, एक है प्लस Q और एक माइनस Q। तो आपको लगता नहीं प्लस Q पे फोर्स लगेगा Q इंटू ई, और माइनस पे फोर्स लगेगा Q इंटू ई इन अपोजिट डायरेक्शन। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो गया तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, और अगर ये यूनिफॉर्म नहीं हुआ तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा। आई होप इट मेक सेंस। इसी के ऊपर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लिखिए। अगेन आपकी एनसीईआरटी किताब, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी में दे रखे हैं, लेकिन दे आर गजब क्वेश्चन। लिखिए, इन अ सर्टेन रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग x direction increasing uniformly. Electric field along x direction, positive x direction, increasing uniformly at the rate of 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब क्या है? ये एक्स डायरेक्शन है, जैसे जैसे आप एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ते जा रही है। ये x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 2, ये x इक्वल टू 3। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे आप x डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बढ़ते जा रहा है। कैन यू सी द मैग्नीट्यूड? और किस रेट से बढ़ रहा है? यानी मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता 0 होता तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता? 10⁵। यहाँ पे कितना हो जाता? 2 इंटू 10⁵। यहाँ कितना हो जाता? 3 इंटू 10⁵। सो दिस इज हाउ इट इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, लेकिन डायरेक्शन वही है। क्वेश्चन है, what are the force, what are the net force and the torque? And net force in the What are the net force and the torque? याद आया torque? Experienced by a dipole P ब्रैकेट में P इज इक्वल टू 10⁻⁷ कूलम्ब मीटर। एक्सपीरियंस बाय डायपोल
10⁻⁷ coulomb meter placed along positive x-axis. Placed along positive x-axis, यानी अगर हम यहाँ पे एक डायपोल भी रख दें ऐसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो उस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना फोर्स लग रहा है और कितना टॉर्क लग रहा है। बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। डायपोल और चार्ज में क्या फर्क है बच्चों, सबसे पहले ये बताओ। एक पॉइंट चार्ज में और डायपोल में क्या फर्क है, बताओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डायपोल एंड अ पॉइंट चार्ज? दो डिफरेंस बताओ। कौन सा वेक्टर है, कौन सा स्केलर है? डायपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरी बात, डायपोल इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू चार्जेस। डायपोल में दो चार्ज होते हैं, दो चार्ज, और वो भी कैसे होते हैं, इक्विवेलेंट, कोई से भी दो नहीं होते। इट्स लाइक अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो डायपोल रिप्रेजेंट टू चार्ज सिस्टम and point charge represent a single point charge, that's all. You get that? Dipole represent two equal and opposite charges separated by some distance. इस कॉन्फ़िगरेशन को हम डायपोल बोलेंगे। और पॉइंट चार्ज तो एक पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं, राइट? तो डायपोल जब भी मैं बोलूंगा तो उसके अंदर कितने चार्जेस दिखने चाहिए, मतलब डायपोल का मतलब उसके अंदर एक नहीं, एक से ज्यादा चार्ज है। कितने चार्ज है? दो चार्ज है, और दोनों कैसे होंगे? इक्वल एंड अपोजिट। तो जब मैं डायपोल पे फोर्स पूछूंगा तो किसी एक पे, एक चार्ज पे फोर्स पूछूंगा या उन दोनों चार्ज पे फोर्स का सम पूछूंगा? सो व्हेन आई एम सेइंग कि डायपोल पे फोर्स बताओ, तो तुमको कैसे दिखना चाहिए कि डायपोल पे फोर्स का मतलब डायपोल के दोनों चार्जेस पे फोर्स। यू गेट दैट? यस सर। तो अगर ये आपकी एक्स एक्सिस है और यहां पे आपने डायपोल रख दिया, ये डायपोल है, और आपको डायपोल पे फोर्स लिखना है, डायपोल की वैल्यू P है। लेट्स से P इक्वल टू क्या लिख देते हैं हम लोग? Q इंटू L। ये L सेपरेशन है। तो बताओ इस डायपोल पे कितने फोर्स लग रहे होंगे? दो फोर्स लग रहे होंगे। एक फोर्स कहां पे लग रहा होगा? प्लस Q पे, और एक फोर्स माइनस Q पे। प्लस Q पे फोर्स कितना लग रहा होगा? Q इंटू E या E1 लिखूं? इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लिखे या अलग अलग लिखे? नॉन यूनिफॉर्म है ना। और दूसरे वाले पे QE2 सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, तो यहाँ पे Q इंटू E2। देखो मैंने यहां माइनस नहीं लगाया, अंडरस्टूड है कि वो अपोजिट, यहाँ पे डायरेक्शन उल्टी बना दी। E E2। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन डायपोल? नेट फोर्स ऑन डायपोल विल बी इक्वल टू, कैसे लिखूंगा? Q कॉमन ले लूं, क्या हो जाएगा ये? E1 माइनस, इज इट क्लियर? एक चीज वापस बता दीजिए कि हमने E1 E2 को डिफरेंट क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है ना दोनों पॉइंट पे। अगर सेम लेते तो जीरो हो जाता फोर्स, बट इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है ना एक्स की डायरेक्शन में। नहीं समझे? नहीं समझ में। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की डायरेक्शन में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। तो आप देखिए कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, 1 पे या 2 पे? देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो पहले। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या लिखी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस अलोंग दी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। कैन यू सी दैट? तो ये जो तो मैंने दो पॉइंट लिए हैं, ये दोनों एक्स अलग अलग एक्स कोऑर्डिनेट पे आएंगे ना। अगर मान लो यहाँ पे कहीं ओरिजिन है 0,0,
तो आपको दिखा दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आना चाहिए। यस सर। अच्छा, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता तो क्या बोलते? उससे 0 हो जाता। वेरी गुड। अभी फोर्स 0 नहीं है, लेकिन अब फोर्स हमने निकाल लिया, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? Q इंटू E1 माइनस E2। अब लेकिन हमें तो Q तो पता नहीं, हमें तो P पता है, तो कैसे लिखूं मैं? Q को कैसे रिप्लेस कर सकता हूं? P/L। वेरी गुड। तो Q इंटू E1 माइनस E2 को डेल्टा E लिख दूं, आ रही है। और इसको क्या लिख दूं? Q को P/L। L। और ये बताओ व्हाट इज डेल्टा E बाय L? अरे यही तो गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यूनिट क्या होगी इसकी, डेल्टा E बाय L की? बताओ। वो एक डेटा और दे रखा है ना आपको, वो क्या है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड है या रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है? वो क्या दे रखा था? 10⁻⁻⁷। वो तो डायपोल मोमेंट था। और कुछ दे रखा था, 10⁻⁵ दे रखा था ना, वो कितना था? वो क्या था? 10⁻⁵ न्यूटन पर न्यूटन कूलम पर पर कूलम। अरे वो यही तो है, ये डेल्टा ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम पर मीटर। न्यूटन। ओ। डेल्टा ई बाय डेल्टा एल ही तो दे रखा है वो, पर यूनिट लेंथ। तो यस कितना हो सर। गया? पी की वैल्यू डाल दो। सो एफ इक्वल टू पी की वैल्यू आपको दे रखी कितनी? 10⁻⁻⁷ इंटू कितना आया? -2। 5। तो कितना आ गया? मुश्किल है या थोड़ा सा मतलब डुएबल है? ये इतना मुश्किल नहीं है। यूनिट्स पकड़ा करो, यूनिट्स। जो डेटा आपको गिवन होगा वही वहां पे लगने वाला है। तुम्हारे नीट में तो बहुत आता है ये, बहुत। M/L दे देंगे। पावर का फॉर्मूला होता है ना, वर्क डन अपॉन टाइम। व्हाट इज पावर? वर्क डन अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो ग्रेविटी का वर्क डन क्या होता है? mgh। और अपॉन टाइम कर दोगे तो इनने m/t दे रखा था, kg पर सेकंड। वाटर फॉल्स ऑन अ ब्लेड ऑफ अ टर्बाइन एट द रेट 20 kg पर सेकंड, फाइंड द पावर डिलीवर्ड। तो वो kg पर सेकंड से बच्चे को समझना था, वर्क डन हो गया mgh/t। m/t दे रखा है, और g और h दे रखे थे अलग। हाइट 80 मीटर दे रखी थी, जी तो सबको पता ही है 10। तो इस तरह से आपको फॉर्मूले में यूनिट से रिलेट करना सीखना चाहिए। समझ में आया अनन्या? कितना Yes, बढ़िया sir. क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चन। इज इट क्लियर टू यू ऑल? अच्छा, व्हाट अबाउट टॉर्क? ये टर्न करेगा या नहीं करेगा? टर्न टर्न कैसे करेगा बताओ? ये फोर्सेस घुमाएंगे या नहीं घुमाएंगे? देखो जरा, कब करता है कोई चीज टर्न? जैसे मान लो एक ऐसी चीज रखी हुई है, इस पे इधर फोर्स लगा, इधर फोर्स लगा, इधर एक तरफ बड़ा फोर्स, एक तरफ छोटा, मान लो टर्न करेगा या ऐसे करने पे टर्न करेगा? बताओ किस केस में टर्न करेगा ये? ऊपर वाले में, राइट। नीचे वाले में टर्न कहां करेगा? एक्सलेट करेगा, बट टर्न नहीं करेगा जी। तो अगर दोनों फोर्स को लीनियर हो गए, एक ही लाइन के लॉन्ग हो गए, तो कभी भी इनका टॉर्क नहीं होगा। नहीं आएगा। तो क्या आंसर लिखें इसका? व्हाट इज द आंसर फॉर दिस केस? व्हाट इज द नेट फोर्स? 10⁻⁻² न्यूटन। एंड व्हाट इज नेट टॉर्क? Will be F1 zero, sin theta. because both forces are Hmm. को जीरो नहीं,
को लीनियर। अच्छा ये बताओ, अगर इसको हम लोग वर्टिकल रख देते डायपोल को हॉरिजॉन्टल रखने के बजाय, तो क्या आंसर होता? इस डायपोल को ऐसे रखने के बजाय हम लोग कैसे रख देते? इस डायपोल को वैसे रखने के बजाय आप ऐसे रख देते, मान लीजिए, अब क्या होता बताइए? वाई एक्सिस के लॉन्ग लिख देते, अब फोर्स लगता कि नहीं लगता? बताओ क्या लगता है आपको? फोर्स लगता कि नहीं लगता? लगता फोर्स, लेकिन इक्वल लगता। इक्वल लगता या अनइक्वल लगता? अब इक्वल लग जाता। क्यों? क्योंकि अब आगे बढ़ने पे बढ़ रहा है ना, इस पॉइंट पे तो एक ही एक्स 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 कोऑर्डिनेट हो गया ना, तो नेगेटिव चार्ज पे पीछे वही Q इंटू ई, और इस पे आगे वही Q इंटू ई। फोर्स अब यहां पे इस केस में, बट टॉर्क जीरो। नहीं होगा। कुछ कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कराना चाह रहा हूं? तो डायपोल की ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा कितना फोर्स और कितना टॉर्क। कितना बढ़िया क्वेश्चन हो गया ये, लिख लो। इफ इन प्रीवियस, नोट लगा के लिख लो, इफ इन प्रीवियस प्रॉब्लम द डायपोल इज प्लेस्ड along y axis, अब ये डायग्राम बना के ये दोनों रिजल्ट लिख लो। ये डायग्राम में 3 लाइनें बनाओ, एक डायपोल ऐसे बनाओ, ऊपर क्यू पीछे क्यू, 4 0, टॉर्क नॉन जीरो। टॉर्क की वैल्यू लिखना जानते हैं आप? आपको याद है टॉर्क कैसे लिखते हैं? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। तो फोर्स कितना है? एफ। एफ कितना है? क्यू इंटू ई, जो भी यहाँ पे ई की इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एल, क्यू ई एल, डायपोल की लेंथ। तो डायपोल को जब हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स भी जीरो हो सकता है, टॉर्क जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, सारे केस एनीथिंग इज पॉसिबल। सो व्हेन द डॉट dipole is placed in a non-uniform electric field, then force can be zero, cannot be zero, torque can be zero, cannot be zero, कुछ भी, anything is possible. Is it clear? अनन्या समझ में आया? यस सर। तो अब आज की क्लास का जो लास्ट पार्ट है, लिखिए डायपोल, मोशन ऑफ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल में डेरिवेशन, नीट में क्वेश्चन, मतलब अब जा करके वो डायपोल का मीनिंग तुमको थोड़ा थोड़ा दिमाग में आया होगा क्वेश्चन करने के बाद। तो एक्चुअली में इस चीज को सीखने के लिए सारी कहानी की थी, जो कि अब इजी लगेगा तुम्हें। क्या है? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द फील्ड तो हो गया, अब मोशन ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दे रखा है आप। सो लेट मी ड्रॉ द लाइंस। ये लाइनें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड? लेट्स से उसकी वैल्यू कितनी है? ई, ई, एवरीवेयर इट इज ई। अब एक डायपोल यहां पे रखते हैं, तो डायपोल जरूरी है कि ऐसा पड़ा हो, या आप तो किसी भी ओरिएंटेशन में हो सकता है? इज इट नेसेसरी कि इट शुड बी हॉरिजॉन्टल ओनली? नो। नो सर। अब हम इस डायपोल को टेढ़ा बनाएंगे, लेकिन जिस पे टेढ़ा बनाओगे लेकिन एंगल तो दोगे ना? यस, एंगल देंगे आपको। ये लो, और ये एरो बना दिया। ये एरो ये बताना चाह रहा है कि इस डायरेक्शन में ये डायपोल है। P will be equal to Q into L।
बताओ जरा इस डायपोल पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे। सबसे पहले फोर्स ऑन डायपोल, क्या हो जाएगा बताओ। तो यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स कैसा लगेगा, क्यू इंटू ई, और माइनस चार्ज पे क्यू इंटू ई, पीछे की तरफ माइनस साइन मैंने अंदर ही लगा दिया, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू ई माइनस क्यू ई। तो यानी डायपोल पे अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी एंगल पे आप डायपोल रखो, क्या एंगल मैटर करेगा, नो सर। बिल्कुल भी नहीं करेगा। फोर्स तो ऑलवेज जीरो है फॉर एवरी एंगल। irrespective of angle, the net force on a dipole in a uniform electric field is always जीरो। अगर डायपोल को आपने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है तो उस पर कोई भी फोर्स वो फील्ड नहीं लगा पाएगा। यानी ये मॉलिक्यूल्स जो हैं पानी के या किसी भी गैस के, ये उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव नहीं करेंगे। एक्चुअली में हो यही रहा है कि एक वाटर को या एक HCl को आपने इलेक्ट्रिक बैटरी के बीच में लगा दिया, तो उसके जो मॉलिक्यूल है वो ऐसा नहीं कि मूव करने लग जाएंगे, नो, आयंस विल मूव बट न्यूट्रल मॉलिक्यूल विल नॉट मूव, क्योंकि न्यूट्रल है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म। हाँ, ये मूव कर जाते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता, जैसा पिछला केस था। ये समझ में आई बात। यस सर। लेकिन अब यहां पे आपको समझ में आ गया होगा टॉर्क ऑन द डायपोल। तो टॉर्क कैसे लिखा जाता है, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बताओ फोर्स की वैल्यू कितनी है, क्यू ई, वन ऑफ द फोर्स लिखना है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लिखोगे, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप बोर्ड में ऐसे लिखोगे, बोर्ड के अंदर ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, फोर्स इनटू कई बार टीचर को समझ में नहीं आता है वो क्या लिख दिया ऐसे करके। तो टॉर्क, ये डेरिवेशन करा रहा हूं टॉर्क का, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क ऑन द डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है वो डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट आएगा 100%। और सिर्फ ये डेरिवेशन यहां पे बोर्ड में आएगा, तुम्हारे नीट में हर जगह आएगा ये चीज, डेरिवेशन नहीं न्यूमेरिकल, इस पे डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ डायपोल और डिफाइन डायपोल, what is the torque on the dipole in a uniform electric field, what is the force on dipole in a uniform electric field, डिराइव कर रहे हैं आप। ये समझ में आई बात। अब बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लिखी जाए इन दोनों के बीच में। तो अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना चाहते हैं तो पहले इन दोनों फोर्सेस को लाइन बनाओ, और ये जो डिस्टेंस है आपको पता है ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, दिस इज L। परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखिए आपको L साइन थीटा या कॉस थीटा, ये एंगल भी थीटा है ना, वेरी गुड, साइन थीटा ही होता है। और वैसे भी R क्रॉस F करते हो तो साइन थीटा आता है ना, तो वो यहां से भी आ रहा है ज्योमेट्री से, तो यहां से आ जाएगा ये L साइन थीटा। अब किसको किसको कंबाइन कर दें, हम तो चार्ज के टर्म्स में लिखते हैं, P के टर्म्स में लिखते हैं, P। तो Q और L को कंबाइन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, P E साइन थीटा। दिखा आपको, P कैसे लिख दिया मैंने, Q और L को हटा के P लिख दिया, क्योंकि डायपोल मोमेंट गिवन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये P गिवन होगा डायपोल मोमेंट के टर्म्स में, E गिवन होगा और थीटा गिवन होगा ओरिएंटेशन। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपको याद हो ये A क्रॉस B, P वेक्टर है ना, अगर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट लूं तो ये क्या होता है, P E कॉस थीटा या साइन थीटा, याद आया क्रॉस प्रोडक्ट। तो टॉर्क को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो इट ऑल्सो बिकम्स P क्रॉस E। तो ये डेरिवेशन
torque at different orientations. Torque on dipole at different orientations. तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है बताना जरा। टॉर्क इक्वल टू क्या है? तो डायपोल पे आ जाओ, यहां पे थीटा है, यहां पे टॉर्क है। व्हाट इज थीटा? इट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में डाला है मैंने? एक्स डायरेक्शन में। और डायपोल अब मैं ऐसे ऐसे लिख रहा हूं, देखो सबसे पहला केस मैंने बनाया ये, बताओ फर्स्ट केस में थीटा क्या है? ऐसे रखा है डायपोल। वेरी गुड। तो जब थीटा 0 है तो टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। और टॉर्क 0 हो जाएगा मतलब इट विल रिमेन, दिस पोजीशन विल बी कॉल्ड एज, इसको कहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगा? इक्विलिब्रियम। सेकंड केस, अब बताना थीटा क्या है? बताओ टॉर्क क्या हुआ? टॉर्क कितना? साइन 180 कितना होता है? -1 0 हाँ n पाई। तो टॉर्क फिर से 0, तो ये भी क्या हो गया? स्पेशल केस ही लिख रहा हूं ऑफकोर्स में। तीसरा देखो, ये बताओ थीटा कितना हो गया? 90। टॉर्क माइनस क्यों? P साइन 90, तो टॉर्क मैक्सिमम हो गया ना, तो इससे ज्यादा टॉर्क हो ही नहीं सकता। आई होप क्लियर है ये। हाँ जी, सर अगर थर्ड वाले क्वेश्चन में उल्टी तरफ एरो बन जाएगा तो इधर माइनस आ जाएगा पी। नहीं तब भी तो थीटा तो 90 रहा ना, देखो। टॉर्क हाँ टॉर्क, नहीं आ गया सर। एक केस और लिख दूं? अब बताना। अब क्या हो जाएगा? 30 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पी का डायरेक्शन, और टॉर्क विल बी P/2, राइट? तो मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है? जब 90, क्योंकि उससे ज्यादा डिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता ना, बाकी सब में डिस्टेंस कम ही है। अच्छा, ये टॉर्क किस डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा? अगर आप ध्यान से देखें, फोर्स ऐसे लग रहा है क्यूई पॉजिटिव चार्ज पे, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स पीछे लग रहा है क्यूई। तो ये डायपोल को कैसा बनाना चाहता है, ऐसा या वैसा? 0 डिग्री पे लाना चाहता है या 180 डिग्री पे, क्या लगता है आपको? वेरी गुड, ये ऐसा करना चाहता है डायपोल को। इट विल ट्राई टू अलाइन विद इटसेल्फ। आप देख सकते हैं ये आगे अगर फोर्स लग रहा है तो इट विल ट्राई टू टर्न लाइक, तो फिर यहां इक्विलिब्रियम कैसे? तो आप देख सकते हैं यहां पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है और ये बस रुक गया है, ये यहां पे
अगर तुमने जरा सा भी टिल्ट किया ना तो घुमा के उल्टा ले आएगा वहीं पे। जरा सा भी अगर ये इस पॉइंट से खिसका ना तो वापस ये नीचे उधर चला जाएगा इधर। सो एक्चुअली में ये जो होता है ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? 0 डिग्री वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम, और दूसरा वाला कौन सा है? 180 डिग्री वाला अनस्टेबल। रीजन मैंने आपको समझा दिया। ये अगर वो बॉल जरा सी भी, आप इसको ऐसे विजुलाइज करो कि ये ऐसे, तो यहां पे अगर बॉल रखी है, अगर आपने जरा सा भी, यहां स्टेबल तो है बट अगर जरा से भी डिस्प्लेस हुई तो ये यहां आ जाएगी, और यहां से डिस्प्लेस करोगे तो यहीं रहेगी। सो दिस इज स्टेबल एंड दिस इज अनस्टेबल। हालांकि दोनों पे ही बॉल अगर दोनों एंगल पे रखी है तो दोनों ही क्या है? कई बार ना स्टेबल और अनस्टेबल से कंफ्यूजन हो जाती है। जो अनस्टेबल है वो इक्विलिब्रियम नहीं है। नहीं, इक्विलिब्रियम तो है बट वो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहेगा अगर आप डिस्प्लेस करेंगे तो। सो 0 डिग्री इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम, 180 डिग्री इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। याद रहेगा? लास्ट लिखिए एक नोट, potential energy of dipole in uniform electric field. So potential energy is defined as the work done by external force. Work done by torque क्या होता है? देखिए फोर्स में F dx लिखते हैं, राइट? टॉर्क में d थीटा लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा ये? इंटीग्रेशन टॉर्क की वैल्यू कितनी है? PE साइन थीटा। बताओ क्या हो जाएगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन? P बाहर आ गया। What is integration of sin theta? Minus cos theta. So potential energy of dipole is minus P cos theta. So कोई भी जो डायपोल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, और देखो जैसे मैंने आपसे कहा था ना, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है किस पे? हाइट पे, पोजीशन पे, और यहाँ पे किस पे कर गई? ओरिएंटेशन पे। क्लास 11th में हमने डेफिनेशन लिखी थी, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन mgh हाफ के एक्स स्क्वायर, और अब आ गया ओरिएंटेशन P cos theta. That theta is not position, that is orientation. So of course it is a potential energy. अगर मैं यहाँ पे अलग अलग केसेस में पोटेंशियल एनर्जी लिख दूं, बताओ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हर जगह? बता सकते हो? इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? माइनस पी कॉस थीटा। डालो वैल्यू। पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला है ना, माइनस पीई कॉस थीटा। कॉस 0 कितना होता है? 1। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? माइनस पीई। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? कॉस 180। कॉस 180 इज -1। तो -1 देखा, हाईएस्ट हो गई ना। यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी देखा, तभी अनस्टेबल है। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी, ये रेफरेंस पॉइंट हो जाता है, आप देखेंगे यहां पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस इंटू √3/2। भाई जो भी एंगल होगा डाल देंगे तो आपको लगेगा पोटेंशियल लिखना बड़ा आसान है। जैसे mgh लिखते थे वैसे यहां पे क्या है? माइनस पी। लिख लो इन सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल एनर्जी। Hence, पोटेंशियल एनर्जी कैन आल्सो बी वेक्टर के फॉर्म में। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जाती है? P माइनस P डॉट E एंड इंटीग्रेट किया था ना अपन ने, PE साइन थीटा को इंटीग्रेट किया था। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ गया? cos माइनस कॉस। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी में माइनस आ गया है। तो अब अपने पास फॉर्मूला क्या बना? माइनस पीई कॉस थीटा। अब इनको मैं कंबाइन कर सकता हूं ना, तो पीई कॉस थीटा कैन बी रिटन एज पी डॉट ई। माइनस साइन तो एज इट इज बाहर पहले ही था, इसलिए माइनस, और कोई रीजन नहीं। इंटीग्रेशन से आ गया माइनस साइन।
ये बताओ, ये आपको समझ में आया मैंने क्या लिखा? वर्क डन टू टर्न द डायपोल। अगर डायपोल को पकड़ के टर्न करना हुआ तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए मैं लिखूंगा फाइनल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल कितनी है, कैसे लिखूंगा? फाइनल एंगल पर फाइनल डिपेंड माइनस करेगी। और इनिशियल कितनी है? θ1। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं और पी कॉमन ले लूं तो आपको दिख रहा है cos θ2 माइनस साइन को अगर अंदर क्लब कर दें तो ये दिख गया P इंटू इसकी काइनेटिक और टोटल एनर्जी नहीं लिखी? काइनेटिक और नहीं, काइनेटिक नहीं लिखते। होती नहीं है या क्या? हम्म होती नहीं है या हमारे सिलेबस में नहीं है? नहीं है ही नहीं, सिलेबस वाली बात नहीं है, होती ही नहीं काइनेटिक एनर्जी। सर क्यों? मॉलिक्यूल है ना, बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल है। पोटेंशियल एनर्जी के आगे काइनेटिक एनर्जी है बट दैट इज वेरी जीरो, दैट इज नेग्लिजिबल, राइट? ओके। तो एक बार डायपोल इतना ज्यादा हमने पढ़ लिया है, थोड़ा सा इसको मैं छोटा करना चाहता हूं। समरी, डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखा हुआ है तो उस पर फोर्स क्या होगा जी? उस पर टॉर्क क्या होगा जी? उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? और उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा टू टर्न? बताओ क्या होगा? ये जीरो। टॉर्क क्या है? बोलो टॉर्क। पीई, इसका डेरिवेशन आएगा एग्जाम में, 100% आएगा टॉर्क को डेरिवेशन। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? माइनस इंटीग्रेट किया था इसको, इसका भी डेरिवेशन आता है बट ये ज्यादा आता है बी वाला। और वर्क डन पे न्यूमेरिकल आएगा। वर्क डन कैसे लिखेंगे? दैट इज डेल्टा यू। खत्म। मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेटर है लिखना, फॉर्मूले से ज्यादा याद नहीं रहेगा। हाँ बोलो बोलो। नहीं सर कुछ। अब एक दो क्वेश्चन कर लें इस पे तब, ताकि नहीं ना ये फॉर्मूले कच्चे रह जाएंगे तुम्हारे दिमाग में, फिर मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, लिखिए। An electric dipole when held at 30 degree an electric dipole when held at 30 degree with respect to a uniform electric field with respect to a uniform electric field 10 raised to power 4 Newton per coulomb, 10 raised to power 4 Newton per coulomb experiences a torque of 9 into 10 raised to power minus 26 Newton meter. 9 into 10 raised to power minus 26 Newton meter. Calculate dipole moment and the potential energy of dipole. सर एक बार टॉर्क ऑफ 9 टू द पावर 10 से एक बार रिपीट कर दीजिए। 10 into 10 क्या जो बोला था? 9 into 10 to the power minus 26 Newton meter. 9 into 10 to the power minus 26 Newton meter. सर उसके आगे नहीं है वर्क? Calculate the dipole moment and the potential energy.
कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। बताओ क्या आंसर होगा पहले का? क्या दे रखा है आपको? टॉर्क दे रखा है। टॉर्क इक्वल टू क्या लिखोगे? पीई साइन थीटा। कितना हो जाएगा पी? पी कितना है? पी निकालना है तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टॉर्क अपॉन ई साइन थीटा। टॉर्क कितना है? 9 इंटू -26 था क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 10⁻⁴ इंटू, आपको दिख रहा है मॉलिक्यूल ही है ये। साइन कितना है? 30। तो यहां से P की वैल्यू आ जाएगी, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 18 हो जाएगा। ऊपर 18 इंटू 10⁻⁻30। यूनिट क्या होती है इसकी? कूलम्ब मीटर। इजी है बिल्कुल। देखो फॉर्मूला याद करना है एक्चुअली में और कुछ नहीं। और उसके बाद क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी, राइट। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। तो डाल दो अब तो। माइनस पी कितना है जी? 18 इंटू 10⁻⁻30। ई कितना है? 10⁻⁴ इंटू साइन थीटा, साइन 30, साइन नहीं, कॉस 30। निकल जाएगा आंसर। √3/2, 9√3 हो जाएगा मेरे ख्याल से। -9 √3 इंटू 10⁻⁻30 नहीं, 26 कूलम्ब मीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए, एग्जांपल नंबर 2। If the work done to turn a dipole if the work done to turn the dipole is if the work done to turn the dipole from if the work done to turn a dipole from stable equilibrium to unstable equilibrium is W, stable equilibrium to unstable equilibrium is W. ठीक, find the potential energy of this dipole. Find the maximum potential energy of this dipole. Find the maximum potential energy of this dipole. ऑप्शन दे रहा हूं मैं। W, W/2, 2W, √3W। कैसे लिखें? तो आपने एक डायपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम से, स्टेबल लेट्स से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम से टर्न कर दिया। कैसा टर्न कर दिया इसको? दिख गया आपको? यानी θ1 की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। और θ2 की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री, राइट। तो आपने इस डायपोल को ऐसे पलट दिया। बताओ जरा आपने कितना वर्क किया? W कैसे लिखते हैं भाई? ΔU, फाइनल एनर्जी माइनस, बताओ 180 डिग्री में पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? पी, अब तो याद रखो, हाईएस्ट, माइनस यहां पे कितनी थी? -P, तो कितनी आई? 2PW के बराबर है। ये फर्स्ट इक्वेशन। और हमें लिखना क्या है? W, U मैक्स। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? P। हो गया W/2। है ना इजी?
समझ में आई बात? ये नीट Yes, का sir. क्वेश्चन, नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आया था, W दे करके पी पूछा था। इज इट क्लियर? Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन लिखिए। two small identical dipoles AB and CD, two small identical dipoles AB and CD, each of dipole moment P are kept at angle 120 degree as shown. Kept at angle 120 degree as shown in the figure. Full stop. What is the resultant dipole moment of this combination? ठीक, आगे लिखिए। If this system is subjected to the electric field along x direction, if this system is subjected to the electric field E along x direction, comma, what will be the magnitude and direction of torque acting on this? What will be the magnitude and direction of torque acting on this system? Also write the potential energy of this system. डायग्राम कुछ ऐसा दे रखा है, ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है। बताओ सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे एक डायपोल या दो डायपोल है? दो डायपोल है, सबसे पहले इनका रिजल्टेंट निकालें। बताओ हर एक डायपोल का पी कितना होगा? Q इंटू 2a होगा कि नहीं? देखिए लेंथ a और a। अब ये जो दो डायपोल हैं, एक डायपोल है ऐसा P और दूसरा डायपोल है ऐसा P, तो रिजल्टेंट डायपोल कैसा आएगा? इन दोनों का रिजल्ट निकालना पड़ेगा। कितना एंगल है? 120। दोनों आइडेंटिकल हैं, तो पी नेट क्या होता है? मैंने आपको रटवा रखा फॉर्मूला, दैट इज 2p cos। याद आया? तो कितना हो जाएगा ये? 2 इंटू पी कितना हो जाएगा? Q इंटू 2a इंटू cos 120/2 cos 60। कितना आ गया ये? P आ गया ना एक तरह से। याद आया? 120 डिग्री पे दो फोर्स होते थे तो सेम इक्विवेलेंट वही हो जाता था। 60 पे √3f, 90 में √2f और 120 में f। तो यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट डायपोल निकल के आएगा वो कैसा होगा? इट विल बी अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। ये है पी नेट, दैट इज जस्ट पी ओनली, दैट इज Q इंटू। समझ में आया अनन्या क्या किया मैंने? Yes. और मुझे ये बताओ, ये जो नेट पी आएगा ये इन दोनों के बिल्कुल बीच में आएगा कि नहीं? एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है, तो बिल्कुल बीच से निकलेगा ही। तो अब दूसरा पार्ट करना चालू करेंगे। बताओ जरा, सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? टॉर्क पूछ रहा है ना, तो टॉर्क कैसे लिखूंगा? पी साइन थीटा। किसका? पहला पी दूसरा पी या नेट पी? नेट पी। पी नेट इंटू ई इंटू साइन थीटा। बताओ पी नेट की वैल्यू तो Q इंटू 2a हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड E दे रखा है, साइन की वैल्यू क्या लिखूं? कितना एंगल है पी नेट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का? और 30। बी केयरफुल, 60 तो ये हुआ ना, तो एक्स एक्सिस के साथ तो 30 लोगे ना, वाई एक्सिस के साथ थोड़ी लेना है। तो रिजल्टेंट जो डायपोल मोमेंट बनेगा वो एक्स एक्सिस के साथ 30 ही बनाएगा, क्योंकि वो दूसरे डायपोल के साथ 60 बनाएगा। कैन यू सी दिस? 60 60 बट एक्स एक्सिस के साथ Yes, sir.
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलॉन्ग है, एक्स के अलॉन्ग, है ना। बढ़िया क्वेश्चन। तो यहाँ पे Yes. 60, यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो ये और ये 2 कट जाएगा, तो कितना हो गया QAE। आई होप इट इज क्लियर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, U विल बी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, माइनस पी नेट इंटू ई इंटू कॉस थीटा। तो पी नेट कितना था, माइनस कितना है जी, Q इंटू 2A इंटू ई और कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू अब डाल देंगे √3/2, हाफ हाफ कट जाएगा ये, तो माइनस √3 QAE। तो मैंने तुम लोग को एक स्क्रीनशॉट भेजा है कि डेरिवेशन किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बट ये न्यूमेरिकल आपसे होने चाहिए, बोर्ड का ही क्वेश्चन था।